Hello everyone, Satyam this side. Welcome once again to your own YouTube channel, Escape English Diary. Sorry for the late video. I was little bit busy somewhere. That's why I was unable to post videos. And today we are going to start a new session, new chapter in English grammar, and that is direct and indirect speech. My dear friends, you must have heard about these words, direct and indirect speech. And somewhere you must have heard about narration. If you talk about in English grammar, you'll not find a chapter named narration. You'll find the chapter called what? If you talk about English grammar, you'll never find a chapter named narration. You'll always find the chapter direct and indirect speech, and this is very important chapter in English grammar or in English speaking also. If you will talk about English speaking, then you probably must have known about these terms that first person, second person and third person. And if some person is talking or sharing his thoughts or trying to share his expressions with others, they usually talks in direct speech. Okay? Or if anything called by a person and reported later by any other individual is called in indirect speech. Okay, in this chapter we'll learn all the things that will help us to learn the chapter, and first is the most important thing in this chapter, we'll learn how to change direct to indirect. Okay, so without wasting our time, just let's move on the session. So today's lesson is what? Direct and indirect speech. First of all, my dear friends, you must have to understand what is direct speech and what is indirect speech. If we are talking about speech, is this chapter only talks about speech, or it could talk about some thoughts or some emotions, you can say. So there are many questions regarding this chapter. You must have many questions in your mind. So we'll clear all the questions related to this chapter. So first of all, let's start. If we talk about direct speech, just see here, when we report people's words, if someone is telling something, talking to someone or telling someone something, then that person will use what? Words. Or he will try to share his thoughts also. That's why here I had put, when we report people's words, thoughts, and you can say beliefs and many more things. Okay. So when we report people's words, thoughts, beliefs, etc., we can give the exact word. Here, the most important thing you must understand, sometimes we don't hear the exact word. Sorry, we don't report the exact expression. We only hear some words, and about that person we report something else. So sometimes you'll find that the sentence you reported must contain some more expression, more words, or maybe sometime it could be less. Okay, that were said or that we imagine were thought. Now read once again. When we report people's words, thoughts, beliefs, etc.,
we can give the exact words more or less that were said or that we imagine were thought. And this kind of structure is called what? Direct speech. This kinds of structure is called what? Direct speech. Though it is used for reporting thoughts as well as speech. So keep in mind, through direct speech, you can't, you don't only report your thoughts. You can also, you don't only report speech. You can also report the thoughts. For example, see here. He said, I want to go home. I want to go home. Now understand it very clearly. That he said, only he said, I want to go home. And here you can see it's something extra, you'll see that, and just worked out. But if you'll try to understand here, that he said, I want to go home. But he didn't say it that he just worked out. It was what? It was just imagined by someone, imagined, or you can say that the person who was listening him, he saw that expression, he saw that movement only. Okay. And she asked, what do you want? She asked, what do you want? And then I thought, does he really mean it? Here all the sentences, these all three sentences are in direct speech. Okay. But when we talk about indirect, just see all these three direct speech, we'll try to change it into indirect. Now see here, we can also make somebody's word or thoughts part of our sentence. Here we can also make somebody's words or thoughts part of our own sentence. Okay, by using conjunctions with noun clause. You must have knowledge about noun clause, and changing pronouns, tenses, and other words where necessary. This kinds of structure is called in indirect speech or reported speech. Okay, and here you can see the change. He said, I want to go home. You'll see here change. He said that. This is what? This is conjunction. Conjunction is used there. Conjunction is used here. So that comes here to add these parts of the sentence. These parts, he said and I want to go home. Both the parts to the sentence. Okay. So he said that. Now see here, change of person. Change of person. As the narrator telling about a third person. That's why it is the reported speech must be in third person and must be said by that person. Okay, so that's why he related to he, and that's why I changed into he. He said that he wanted to go home. Here you can see also here you can see the change of tense to want and wanted. It was in simple present and it is in simple past, but the later part of the sentence was just as there in direct speech and just worked out because it was just added by the narrator. It wasn't said, so you didn't see the change in this sentence. Okay, and she asked what I wanted. You'll learn later how this sentence is changed, how these sentences are being changed. Okay, and then I wondered what whether he really meant it. You'll see the change, how did it changed in these sentences. So normally you can see two types of sentences. In this chapter you will learn both the sentences, first direct and indirect speech. Let me repeat once again.
in Hindi for students who don't understand English properly. See here, when we report people's word, if someone asks you what is direct speech, then you can answer that जब कोई लोग किसी दूसरे के द्वारा कहे गए शब्दों, उसके सोच, उसके विचार या उसके विश्वास को रिपोर्ट करता है, दर्शाता है ना, देन वी कैन गिव द एग्जैक्ट वर्ड्स। तब उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो जैसा उसका वर्ड है बिल्कुल उसी तरीके से आप रख लें, जैसा उसका वर्ड है बिल्कुल उसी तरीके से आप उसको वैसे का वैसा रख लें, या यदि आप चाहें तो उसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी बढ़ोतरी और थोड़ा सा उसको कमा भी सकते हैं एज पर योर इज। ओके, नाउ सी हियर दैट वाज सेड। तो जो कुछ भी चीजें कही गई हैं उसमें आप थोड़े से चेंजेस पॉसिबल हैं, कभी कभी इमोशंस के वजह से, कभी कभी कुछ मूवमेंट्स की वजह से ये चेंज वहां पे पॉसिबल हो जाता है। और नाउ सी दैट वी इमेजिन वर थॉट, दैट वी इमेजिन वर थॉट, यहां पे वी सेड और दैट वी इमेजिन वर थॉट, या जो कुछ कहा गया या जो कुछ भी हमने इमेजिन किया उन बातों को, ठीक है। और दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर और इसी तरीके के जो सेंटेंस होंगे वो डायरेक्ट स्पीच में कहे जाएंगे। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखिए, ही सेड आई वांट टू गो होम, वह सिर्फ इतना ही कहा कि वह घर जाना चाहता है, लेकिन इसमें एक चीज आगे जो हमने ऐड होता हुआ देखा, एंड जस्ट वर्कड आउट, और वह चला गया। अब ये चीज जो है यह, और वह चला गया, यह उसने बात कही नहीं थी, यह सिर्फ किसने देखा, जो नैरेटर है जो इस बात को अभी बता रहा है, सिर्फ उसने इस चीज को देखा। तो ये मूवमेंट्स जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे आया है, ये मूवमेंट यहाँ पर आप एक्स्ट्रा देख रहे हैं। तो ये मूवमेंट एक्स्ट्रा जो आपको दिख रहा है, तो यही चीज का चर्चा, यही बात मैंने यहाँ पे कही थी कि कुछ चीजें कभी कभी घट जाती हैं और कभी कभी बढ़ जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो इनडायरेक्ट स्पीच को क्या कहेंगे, तो जब हम किसी के द्वारा कहे गए शब्दों और विचारों को अपनी भाषा, अपने सेंटेंस का हिस्सा बनाते हैं, जिसके लिए हम कभी कभी कंजंक्शन का यूज करते हैं, कभी नाउन क्लाउज का यूज करते हैं, या कभी उसमें प्रोनाउन का चेंज करते हैं, टेंसेस का चेंज करते हैं, और कभी कभी कुछ और भी जरूरी चीजें, जरूरी पार्ट्स सेंटेंस के बदलने पड़ते हैं। उन सब चीजों को जब बदलकर हम अपनी भाषा में, अपने सेंटेंस में उसको डालते हैं, तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वह इनडायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर कहलाता है, या इसी को रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, दिस टू स्ट्रक्चर कैन नॉट नॉर्मली बी मिक्स्ड, और ये साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों तरह के सेंटेंस जो है, दोनों तरह के स्ट्रक्चर जो है मिक्स नहीं किए जा सकते हैं, आपस में मिलाए नहीं जा सकते। कहने का मतलब है कि इसमें आप वैसा कोई चेंज नहीं कर सकते जो आपको लगे कि नहीं ये कुछ और है और वो कुछ और है। तो ये तो हो गई इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अभी चलिए इसमें कुछ स्पेशल हम लोग अभी सीखेंगे। इसमें स्पेशल क्या है, स्पेशल आई वॉज लाइक। अभी जैसे हमने देखा ही सेड, ही सेज, ही विल से, इस तरीके का कुछ सेंटेंस आपको ही सेड, अभी जस्ट आपने देखा ही विल से या ही सेज, ठीक है, या फिर ही विल से, ऐसा करके हम लोग देखते थे सेंटेंस। और पुराने तरीके ट्रेडिशनल जो ग्रामर है वो कुछ इसी तरह का सेंटेंस आपको हमेशा देता है। लेकिन अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा है, कुछ सालों में क्या हुआ है कि इन रिसेंट ईयर्स द स्ट्रक्चर बी लाइक, अभी बी लाइक मीनिंग, बी लाइक का मतलब क्या होता है, कहना होता है, से होता है। ये क्या हो चुका है, काफी इनफॉर्मली जो है वो कॉमन हो चुका है, ठीक है। ये स्पीच रिपोर्टिंग में, ये रिपोर्टिंग फॉर्मूला के लिए काफी कॉमन हो चुका है, ठीक है। स्पेशली व्हेन डिस्क्राइबिंग पीपल्स एटीट्यूड्स, जब उसके एटीट्यूड्स के साथ, मतलब कहने का मतलब किसी बात को सिर्फ आप दोहरा रहे हैं तो बस उतना नहीं, बस अगर उसको इमिटेट भी कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ उसके एटीट्यूड, उसके ढंग को भी दिखा रहे हैं, उसको इमिटेट भी कर रहे हैं आप, तो ये आई वॉज लाइक जो है वहां पे काफी यूज होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ काफी खूबसूरत दिया हुआ है, इसको काफी मतलब इसके एक्सप्रेशन के साथ पर है। आई वॉज लाइक व्हाई डोंट यू कम आउट विद अस, आई वॉज लाइक व्हाई डोंट यू कम आउट विद अस, एंड शी वॉज लाइक
एंड शी वाज लाइक ओके कूल व्हाट टाइम। ये मान लीजिए कि कोई दो व्यक्ति जो है आपस में बात कर रहे हैं और ये पहला बोल रहा है कि मैं जैसे था व्हाई डोंट यू कम, मैंने कुछ इस तरीके से बोला कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं आती, हमारे साथ क्यों नहीं आती। तो उसका जवाब है कि और सी बस लाइक वह बोलती है कि ओके ओके कूल व्हाट टाइम, क्या समय, किस समय आना है ना। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन भी आपको यह बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ये स्टार्टिंग जो इसका देखेंगे तो इस तरीके का ओरिजिनली जो ये यंग अमेरिकन में देखने को मिला था। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो एटीट्यूड को जब इमिटेट करते थे किसी पीपल को तो वो क्या करते थे, इस तरह के एक्सप्रेशन को यूज करते थे। बट अभी क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर जो है अब स्पीच में काफी लोगों में ऑल द एजेस में ये क्या हो गया, ब्रिटेन में भी, नॉर्थ अमेरिका में भी, है ना, या आई डोंट वांट टू, ये सारे जगह ये क्या हो गया, ये काफी कॉमन हो चुका है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एक यूनिवर्सिटी टीचर जो है वो टॉकिंग क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स के चैटिंग की बात कर रहा है। जो लेक्चर में क्या कर रहे थे, चैटिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो उसके बारे में बात कर रहा है, किस तरीके से एक्सप्रेशन से वो बोल रहा है कि आई डोंट वांट टू बी लाइक, सॉरी आई डिडंट वांट टू बी लाइक, मैं उस तरीके से नहीं बनना चाहता, प्लीज बी क्वाइट, शांत हो जाओ। अब ये यहाँ पे सिर्फ बातें नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं है, वो अपने थॉट्स या अपने विचार, वो अपने शब्दों को सिर्फ नहीं बोल रहा है, उसके साथ साथ कुछ एटीट्यूड्स भी हैं जो वह दिखा रहा है। तो एक चीज, ये नया चीज जो है आपको इसमें आजकल जो है ये ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन की बात। आइए फिर आगे देखते हैं। अब जरा सा हम बात कर लेते हैं कि अगर नरेशन को देखा जाए, ठीक है, तो किसी भी नैरेटेड, किसी भी स्पीच के आप पाएंगे कि दो पार्ट्स होते हैं। ही सेड टू मी, यहां देखेंगे एग्जांपल में काफी अच्छे तरीके से आपको दिख रहा है, यहां पे आप समझिए इसको, यहां पे आप देखिए कि इसमें आपको दो पार्ट कितना खूबसूरत तरीके से दिखाई देगा। ही सेड टू मी, ये वाला पार्ट, और आई लव माई पेरेंट्स, ये वाला पार्ट। इसमें आप देखिए कि ही सेड टू मी, ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। ये वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और ये वाले पार्ट को बोला जाता है रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। ये वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। बट इसमें आप ध्यान रखिए, इसमें और अच्छे तरीके से समझने के लिए, याद करने के लिए इसको आप क्या कर सकते हैं कि ये इन्वर्टेड कॉमा जो दिख रहा है आपको, ये इन्वर्टेड कॉमा जो आपको दिख रहा है, इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस को आप हमेशा रिपोर्टेड स्पीच मानेंगे, और उसके बाहर वाले जो वर्ड होंगे, जो पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा, उसको आप क्या मानेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब मानेंगे। लेकिन सवाल आता है कि द क्वेश्चन विल कम इन योर माइंड दैट इज दिस होल सेंटेंस इन रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब में है? नो, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज subject of reporting verb, and this actually, this said is reporting verb, this said is reporting verb only, okay, and this me, it is object of reporting verb, object of reporting verb, okay. And this part here, this part, this is what, this is the whole part is called what, reported speech. And then here you will find actual sentence, maybe it has just a subject and predicate, or it may be longer than that. Yeah, so here I is subject of reported speech, love is verb of reported speech, and my parents, this is like object of reported speech. तो यदि आप किसी भी स्पीच को देखें तो यूजुअली आपको दो पार्ट्स ही दिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट, रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट। इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे और इसको समझ लेंगे। ये चैप्टर अभी का बस, इसमें आज हम लोग केवल इंट्रोडक्शन पार्ट ही करेंगे। इंट्रोडक्शन के आगे का जो पार्ट होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे।
पहले आप इसको अच्छे तरीके से काफ़ी सावधानी से इसको समझ लीजिए, फिर हम लोग अगले पार्ट में जो है इसका जो कैसे इसको चेंज करना है। हालांकि ग्रामर कभी ये नहीं कहता कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदल दिया, कैसे किस तरीके से आप उसको चेंज करना है। बड़े बड़े राइटर्स का बुक आप जब पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के लिए यदि मैं माइकल स्वान का एग्जाम्पल लूँ, माइकल स्वान जो जिन्होंने ये प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेस करके एक इनका बुक था, काफ़ी इंटरनेशनल एडिशन जो आया था, तो उसमें इन्होंने बताया है कि लोगों को जो भी ग्रामर जो बोलते हैं या जो नेटिव स्पीकर होते हैं इंग्लिश के, जो इंग्लिश के नेटिव स्पीकर होते हैं, तो नेटिव स्पीकर इन सब चीज़ों को सीखते नहीं हैं। इसके रूल्स को, बड़े बड़े जो रूल्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं, चेंज ऑफ टेंस के, चेंज ऑफ पर्सन के, उसको सीखने का प्रयास नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं कि रिपोर्ट करते हैं तो वो चेंज कर देते हैं, और यही चीज़ हम लोग भी करते हैं एक्चुअल में। इन हिंदी वी डू दिस टाइप ऑफ चेंजेस, बट हमें ये समझ नहीं आता कि हमने कहाँ क्या चेंज करना है, कब टेंस को चेंज करना है, कब पर्सन को चेंज करना है, या कब सेंटेंस के किसी और पार्ट्स को हमें चेंज करना है। दैट्स व्हाई वी यूज टू लर्न, वी ट्राई टू लर्न और ट्राई टू रिमेंबर ऑल द रूल्स गिवन इन ट्रेडिशनल ग्रामर ऑफ what subject direct and indirect speech. So in like traditional grammar we'll learn to change to direct to indirect, and there we'll learn change of person, change of tense, and then change of other parts of speech. Before starting the change, you must understand one thing in direct indirect speech. Clearly you'll have to understand the number and case table. This is the very most important section. This is most important section because the whole change of person is based on this table. If you remember or learn this table, you can easily do any kind of change of person. It will be no more your problem in English grammar. See here, first of all try to learn this table. Nominative case, it can also be said subjective case. In nominative case you'll find I, we, first person singular number, we first person plural number, second person singular or plural both, and third person singular number he, she, it. One is missing here, they. Third person plural number. Okay, in this table you will note it down. Okay, and if you change nominative to objective, if you try to change nominative to objective case, you will have to change according to this. If you change I into objective case, then I will be changed in me. I का objective case me होता है, we का us होता है, you का you ही रहता है, he का him होता है, she का her होता है, it का it ही होता है, और यहाँ पे they का क्या हो जाएगा, they का them हो जाएगा. Keep it in mind. Okay. और यदि नॉमिनेटिव केस इन सभी नॉमिनेटिव केसेस का आप पॉजिटिव केस देखना चाहते हैं, तो आई का यदि पॉजिटिव केस आप देखें तो आई का माई होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर, पॉजिटिव केस दो तरीके से हैं, एक है पॉजिटिव एडजेक्टिव और दूसरा है पॉजिटिव प्रोनाउन. तो पॉजिटिव एडजेक्टिव सबसे पहले हम समझते हैं. तो आई का माई हो जाता है, वी का आर हो जाता है, यू का योर हो जाता है, ही का हिज हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट्स हो जाता है, और दे का देयर हो जाता है. THEIR.
ओके। अगर इन्हीं पॉसेसिव इन नॉमिनेटिव केसेस का आप यदि पॉसेसिव प्रोनाउन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अंतर दोनों में समझ लीजिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। हिंदी मीनिंग आप यदि देखें तो दोनों का मेरा ही होता है, मेरा या मेरी ही आपको दिखेगा, बट इसके यूज में एक थोड़ा सा अंतर है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव के हमेशा बाद आपको कोई नाउन दिखेगा और पॉसेसिव प्रोनाउन के हमेशा बाद आपको पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी नाउन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो जैसे एग्जांपल के लिए माई पेन, माई पेन, माई पेन, अब यह माई के बाद आपको पेन एक नाउन दिख रहा है। अगर इसको करें माइन पेन, माइन पेन, तो ये गलत हो जाएगा, इसको करना पड़ेगा दिस पेन इज माइन, पेन इज माइन, कुछ इस तरीके से, पेन इज माइन, कुछ इस तरीके से। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो आर का क्या हो जाएगा, आर्स हो जाएगा। यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे ध्यान रखिए। तो आर का क्या हो जाएगा, आर का आर्स हो जाएगा, योर का योर्स हो जाएगा, हिज का हिज ही रहेगा, हर का हर्ष हो जाएगा, और ईट का यहाँ पे आप देखेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता, और दे का फिर दियर्स हो जाएगा। ओके, माइंड का माई सेल्फ, आर का वी का आर सेल्फ, यू का योर सेल्फ एंड योर सेल्फ्स। यू का यदि मतलब केवल तुम हो, आप हो, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे योर सेल्फ चेंज करेंगे। लेकिन अगर उसका तुम, यू का मतलब तुम लोग हो जाए या फिर आप लोग हो जाए, तो आप क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे योर सेल्फ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिज का ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ और इट का इट सेल्फ। ये इतने चेंजेस इसमें होते हैं। इस टेबल को तो सबसे पहले अच्छी तरीके से आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे कि किसका चेंज होकर किस में जाता है। अब जरा अगर हम बात कर लें, चलिए एक बार इसको हम जो भी नोट किए आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा। मैं ये सारे जो भी मैंने लिखा है इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब जो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो आपको ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप इस टेबल को देखेंगे तो इस टेबल के हिसाब से आप चेंज कैसे करेंगे, है ना, सेंटेंस में चेंज कैसे आपको लाना है। तो चेंज लाने का सिंपल सा तरीका क्या है, किसी भी तरीके से आप यदि चेंज ऑफ पर्सन करते हैं तो ये चेंज ऑफ पर्सन इसी टेबल के माध्यम से होगा। यू हैव टू यूज दिस टेबल ओनली। एक चीज का और ध्यान रखेंगे इसमें कि जिस केस में से आपने चेंज करना है या क्वेश्चन में जिस केस में आपको दिखे, यदि नॉमिनेटिव केस में क्वेश्चन है तो चेंज होकर हमेशा नॉमिनेटिव केस वाला वर्ड ही वहां पे यूज होगा, कभी भी बाकियों से उठ के कोई दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी बाकियों से उठ के दूसरा कोई नहीं आएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यदि किसी ऑब्जेक्टिव केस के वर्ड को आप चेंज कर रहे हैं तो वहां हमेशा ऑब्जेक्टिव केस वाला वर्ड ही रिप्लेस करेगा उसको। ठीक है, और यदि आप पॉजेसिव एडजेक्टिव का देख रहे हैं तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का, पॉजेसिव प्रोनाउन का देख रहे हैं तो उसका, और यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का देख रहे हैं तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही वहां पर दिखेगा। किसी भी हाल में आपको इस तरीके से चेंज नहीं करना है। मतलब कहने का है कि नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस से नहीं बदलेगा, पॉजेसिव केस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से नहीं बदल जाएगा, पॉजेसिव केस ऑब्जेक्टिव केस से नहीं चेंज होगा, नॉमिनेटिव केस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से नहीं बदलेगा। जब भी चेंज होगा तो ऑब्जेक्टिव केस वाला हमेशा किसी ऑब्जेक्टिव केस से ही चेंज होगा, नॉमिनेटिव केस वाला हमेशा नॉमिनेटिव केस से ही चेंज हो जाएगा, पॉजेसिव चेंज वाला हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव चेंज से ही चेंज होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन वाला हमेशा पॉजेसिव प्रोनाउन से ही होगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ही होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अभी चलिए अब थोड़ा सा हम क्या समझते हैं, थोड़ा सा इसमें आपको जो समझना है थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
अभी तक मैंने जो भी बताया आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। और जल्द से ही इसका जो चेंज वाला जो वीडियो होगा, वो चेंज वाला वीडियो हम जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। इस वीडियो को, इस सेशन को यदि आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शेयर के साथ साथ यदि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे सब्सक्राइब करने को भी ज़रूर बोलें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को हार्दिक बधाई आने वाले नए वर्ष के लिए। हैप्पी न्यू ईयर। एंजॉय योर डे, एंजॉय योर ईयर। विल